screen. ये लेक्चर 4 है सॉलिड स्टेट का. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के बारे में देखें. कितने टाइप्स के क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हो सकते हैं. तो इसको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है. हम एक वीडियो प्ले करते हैं, देखना वो विजिबल होता है या नहीं. चलो रुको एक मिनट. अभी दिख रहा है स्क्रीन यूट्यूब वाला? हेलो. यस सर. दिख रहा है. One dimension. In प्ले one हुआ क्या? dimension close packing, हाँ. there is just one way हम्म, of arranging the Yes, sir. spheres. Here, स्क्रीन पे प्ले the हो रहा है तुम spheres लोगों का? हाँ सर हो रहा है. हो रहा है. चलो, तो शुरू से ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा. कहीं भी दिक्कत होगा तो बोलना, पॉज करेंगे. ठीक है सर. ठीक, ठीक है. तो हम्म. वॉल्यूम्स ऑन कर लो. वो है ना सबका? एयरपीस काम कर रहा है ना? यस सर. चलो हम प्ले कर रहे हैं. ठीक है. the three-dimensional modes of packing रुको, आवाज आ can रहा है be ना? easily understood यस सर. ठीक है. by dividing the whole process into three steps. Close packing of spheres in one dimension. In one dimension close packing, there is just one way of arranging the spheres. एक Here, मिनट रुको, रिकॉर्ड हो रहा है यानी are क्लास. रिकॉर्डिंग तो ऑन है. चलो, प्ले हुआ? arranged in a row, touching one Yes, another. यस सर. As a result, each sphere is in contact with two neighboring spheres. Thus, in one-dimensional close packing, the coordination number is 2. Close packing of spheres in two dimension. Close packing structures in two dimension can be generated by stacking rows of one-dimensionally closed packed spheres, one above the other. This can be done in two ways: square close packing and hexagonal close packing. Square close packing. In this type of packing, the second row of spheres is placed in contact with first row in such a way that the spheres of the second row are placed exactly above the spheres of first row. In such an arrangement, the spheres are aligned horizontally and vertically such that each sphere is in contact with four other spheres. So, the coordination number is 4. If we call the first row as A-type row, the second row being exactly same as the first row, so it is also called as A-type. If we keep on placing such similar rows one above the other, such an arrangement is known as AAA type of arrangement or square packing. Hexagonal close packing. In this type of packing of spheres, the second row of spheres is placed in a staggered manner such that the spheres fit in the depressions of the first row. If we call the first row as A type, then as the second row is different from the first row, it can be called as B type. Now, if we place a third row above the second row in the similar manner, we will observe that the third row spheres are aligned with those of first layer, and each sphere is in contact with 6 other spheres. So, the coordination number is 6. Similarly, on placing the fourth layer, we will observe that the fourth row of spheres are aligned with those of second layer. Hence, this type of arrangement
is known as ABAB type of arrangement or hexagonal close packing. If we compare square close packing with hexagonal close packing, we will observe that empty spaces are less in hexagonal close packing than compared to square close packing. Now, what are these empty spaces and what role do they play in packing efficiency? The empty spaces in between the spheres are known as voids. These voids are responsible for decrease in packing efficiency of the solid crystal. More the number of voids, less is the packing efficiency of the crystal. Now, you must be wondering what is meant by packing efficiency. We have discussed about this in later part of the section. Now let us study about close packing in 3 dimensions. यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर No, ये sir. स्फीयर्स तो एटम है ना? क्या? सर ये स्फीयर्स तो एटम है ना कोई भी? हाँ, स्पेयर्स एटम है। तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल वाला हो गया। तो 1 डायमेंशनल में तो एक ही टाइप का अरेंजमेंट था, उसमें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि सिंगल लाइन बनेगा। 2 डायमेंशन में 2 बताया गया, एक स्क्वायर वाला जिसके में एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा गया, तो वो स्क्वायर वाला था, और दूसरा हेक्सागन वाला। समझ में आ गया ना? सर लास्ट में एक लिखा था कि वर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या एफिशिएंसी लिखा हुआ था ना? हाँ, वॉइड्स क्या करता है, वो पैकिंग एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है ना। जितना ज्यादा वॉइड होगा तो पैकिंग एफिशिएंसी उतना कम होगा ना। हाँ। तो वही चीज बताया गया। ठीक है, यस सर। चलो अब नेक्स्ट, ये थ्री डायमेंशनल वाला है, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, क्लियरली आ रहा है ना सारा चीज? यस सर। यस सर। चलो इसको प्ले कर रहे हैं हम, इसको अच्छे से देखना, ध्यान लगा के, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो प्ले कर रहे हैं। 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packed layers. This type of packing is obtained by placing 2-dimensional square closed packed layer above the first one, such that the spheres of the second layer are exactly above the spheres of the first layer. In this arrangement, the spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally and vertically. On arranging layers one after the other in this pattern, we will observe that each sphere is in contact with 6 other spheres. 4 from the same layer, 1 from the layer above, and 1 from the layer below that sphere. So, the coordination number is 6. If we call the first layer as A type, and since all the layers are also of the same type, this kind of arrangement is known as AAA type of arrangement. On observing carefully, we will find that this arrangement has generated a simple cubic lattice, and its unit cell is primitive cubic unit cell. Dimensional close packing from चलो, 2-dimensional ये वाला जो अभी गया उसमें कोई डाउट है? 3 डायमेंशनल वाला ऑब्टेन किया गया स्क्वायर वाले से, 2 डायमेंशनल स्क्वायर वाले पैकिंग से। कोई डाउट है उसमें? नो सर। समझ में आ गया ना परफेक्टली? यस सर। तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? टोटल 6 आया था। कोई भी एटम अगर कंसिडर करोगे तो 4 तो उसी मतलब जिस लेयर की बात कर रहे हैं 4 उसी लेयर में मिलेगा, एक टॉप वाले लेयर का एटम और एक बॉटम वाले लेयर का एटम। तो टोटल वो कितने एटम्स के कांटेक्ट में रहेगा? कोई भी एटम अगर लोगे तो 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है 3 डायमेंशनल ऑब्टेन किया गया है
टू डायमेंशनल वाले हेक्सागोनल पैकिंग से, ठीक है, जो हेक्सागोनल पैकिंग था टू डायमेंशनल का, उससे थ्री डायमेंशनल ऑब्टेन किया गया, ठीक है। तो इसको देखना अच्छे से, थोड़ा सा बैक कर देते हैं। चलो देखो, And its unit cell is primitive cubic unit cell. Dimensional close packing from two-dimensional hexagonal closed pack layers. The three-dimensional hexagonal closed pack structure can be obtained by placing two-dimensional hexagonal structures one layer above the other. Placing second layer over the first layer. Let us take a two-dimensional hexagonal closed packed layer A. Notice this layer has triangular voids. Place a similar closed packed layer in such a way that the spheres of the second layer are placed in depressions of the first layer. As the spheres of the second layer are aligned differently as compared to the first layer, so let us call this layer as B-type. On observing, we will notice that not all the triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer. This gives rise to a different arrangement and different voids. Voids. This चलो gives ये rise. समझ में आया? सर ये तो फिट हो जाएगा ना एकदम? क्या? सर ये यहाँ फिट हो जाएगा ना एकदम इसमें? फिट हो जाएगा मतलब दूसरा वाला जो लेयर प्लेस किया गया है ना, तो वो फर्स्ट वाला जो लेयर था उसका जो वॉइड बनेगा, बीच में ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा ना, यस सर। तो दूसरा वाला लेयर जो है उस वॉइड के ऊपर रखा गया है, मतलब जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर प्लेस किया गया है, ठीक है। साइड वाले एटम्स में वर्ड नहीं दिखाया गया है। वो तो कंटिन्यू रहेगा ना, वो तो सारा पूरा थोड़ी दिखाया जा सकता है, वो तो कुछ पार्ट दिखाया गया है उसका, वो तो कंटिन्यू रहेगा ना, वो तो कंटिन्यूअस रहेगा, यस सर। ठीक है। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। हाँ सर। चलो अब देखो वॉइड के बारे में बताया जाएगा, कितने टाइप्स के वॉइड होते हैं, तो वॉइड अच्छे से देखना। To a different arrangement and different voids. Voids. There are two types of voids. Tetrahedron voids, denoted by T, octahedron voids, denoted by O. Let us study how these voids are formed. When we place a closed packed layer above the depressions of the first layer, we will notice that at some places the triangular voids of the first layer are being covered by the spheres of second layer. At such places, a type of void is formed. This type of void is known as tetrahedral void, T. Since a tetrahedron is formed by joining the centers of the four surrounding spheres. While at other places, we will notice टेट्राहेड्रल that वॉइड समझ triangular में आया? यस सर। जो तीन रहेगा नीचे वाला लेयर जो है उसका जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर डायरेक्टली कोई एटम है, तो मतलब नीचे वाले लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो पूरा पूरा कवर हो गया उस एटम से, ठीक है। तो वहां पे जो वॉइड क्रिएट होगा ना, उस वॉइड को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्योंकि वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस चारों एटम्स जो है उन सब चारों एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप का बनेगा, तो इसलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है, ठीक है। यस सर। चलो अब नेक्स्ट बताया जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, तो इसको अच्छे से देखना। तो दो ही टाइप के वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल होता है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल होता है।
by joining the centers of the 4 surrounding spheres. While at other places, we will notice that the triangular voids of the first layer coincides with the triangular voids of the second layer, such that their triangular shapes do not overlap. At such places, another type of void is formed. This type of void is known as octahedral void, O, since an octahedron is formed by joining the centers of the 6 surrounding spheres. Now, in case we need ठीक है, to देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड इस टाइप का है, देखो वॉइड्स के बारे में लिख रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन क्या? यस सर। देखो वॉइड्स के बारे में, तो पहला हो गया टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे मान लो ये 3 एटम आपस में क्लोज पैकिंग में है, ठीक है, ये इस टाइप से होगा। यहाँ जो ये ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक एटम जस्ट प्लेस्ड है, मतलब ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसके जस्ट ऊपर में हम लोग इन चारों एटम के सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस वॉइड को, यहाँ जो वॉइड होगा ना, इस वॉइड को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्म होगा जब टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करने के लिए टोटल कितने एटम्स कांटेक्ट में होने चाहिए? 4 एटम्स इन क्लोज कांटेक्ट, है ना, 4 एटम्स इन क्लोज कांटेक्ट। तो ये कैविटी या जो वॉइड बन रहा है ये कब क्रिएट होगा? जब किसी एक एटम, सेकंड लेयर का एटम अगर हम लोग डायरेक्टली रख दें ओवर द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना टेट्राहेड्रल वॉइड? बोलो। यस सर। नेक्स्ट होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऐसा समझो कि इसमें डायरेक्टली नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, जैसे मान लो एक लेयर ऐसे है, ये है एक एटम, ठीक है, ये इस टाइप का, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। अब दूसरा वाला जो लेयर है ये इस टाइप से रखा गया है, मतलब ये उलट के, इसको जस्ट 1 मिनट रुको, इसको ऐसे कर, ठीक है, और ये ऐसे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो बीच में एक वॉइड क्रिएट होगा, मतलब नीचे वाले लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा और ऊपर वाले लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, वो दोनों बीच में, वो दोनों में एक गैप नीचे क्रिएट होगा, होगा ना। यस सर। तो उसी वॉइड को बोला जाता है, यहाँ जो वॉइड बनेगा बीच में, देखो पहला वाला लेयर ऐसे है, दूसरा वाला लेयर जो है जस्ट उसका उल्टा हम लोग पुट कर दिए, 2 एटम ऊपर पुट कर दिए, 1 एटम नीचे। तो वहां पे जो बीच में एक गैप बनेगा या बीच में जो वॉइड बन रहा होगा, इस वॉइड को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आने के लिए टोटल कितने एटम्स क्लोज कांटेक्ट में हैं यहाँ पे, बताओ तो? 6। 6 एटम्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम्स जो है ये क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये डिफरेंस है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये नोट करके लिख लेना कि नंबर ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसी भी पैकिंग में, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ जेड इफेक्टिव। मतलब उस पैकिंग में जितना जेड इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो उसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर जो होगा हमेशा जेड इफेक्टिव से ट्वाइस होगा, जिस भी पैकिंग में के लिए पूछा जाए, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसी भी पैकिंग में, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू जेड इफेक्टिव।
तो जितना उस पैकिंग का z इफेक्टिव होगा, सॉरी ट्वाइस नहीं, इज ऑलवेज इक्वल टू, ट्वाइस होगा टेट्राहेड्रल में, ऑलवेज इक्वल टू z इफेक्टिव। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा हमेशा z इफेक्टिव के दुगना होगा, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो हमेशा z इफेक्टिव के इक्वल होगा किसी भी पैकिंग में अगर पूछा जाए तो। चलो यहाँ तक क्लियर है, वॉइड्स क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो अब देखो, कंटिन्यू करो वीडियो, प्ले करते हैं। यही चीज यहाँ बताया गया है, ये पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। हो रहा है ना प्ले? Formed by joining the centers Yes, of the sir. 6 surrounding spheres. Now, in case we need to calculate the number of tetrahedral and octahedral voids in a crystal structure, then just knowing the number of spheres will serve the purpose. Suppose there are n spheres in the crystal structure, then the number of octahedral voids generated is equal to n. The number of tetrahedral voids generated is equal to 2n. ठीक है, वही चीज है कि ना n या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो n के बराबर, मतलब z इफेक्टिव के बराबर हो गया, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है ये 2 into z इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो अब आगे देखो। Placing third layer over second layer. Now let us place third layer over second layer. Stacking of third layer over second layer can be done in two ways. First, by covering tetrahedral voids. Second, by covering octahedral voids. By covering tetrahedral voids. The tetrahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer will get exactly aligned with the spheres of the first layer. So, if we can call the first layer as A type and the second layer as B type, then the third layer will also be A type. As the pattern of spheres is repeated alternately in other layers, so this pattern is known as AB pattern. सर ये And the टेट्राहेड्रल है structure ना? formed is known as क्या hexagonal चीज? closed. सर ये टेट्राहेड्रल है ना? ये है मतलब क्या है, थर्ड लेयर को प्लेस किया जा रहा है सेकंड लेयर के ऊपर। तो थर्ड लेयर को प्लेस करने का दो तरीका हो सकता है, एक तो हम लोग जितने भी सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको कवर करना है, तो वो वही चीज बताया जा रहा है कि अगर सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने जाओगे सारे, तो जो थर्ड लेयर बनेगा ना, वो थर्ड लेयर जो होगा बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के जैसा होगा, अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड सेकंड लेयर का कवर करने जा रहे हैं तो देख रहे हो, जो पहला वाला जो लेयर है, नीचे वाला लेयर, फर्स्ट लेयर जो है, और थर्ड लेयर जो बना वो क्या है, जस्ट एग्जैक्टली सेम आ रहा है। यस सर। तो इसीलिए ये पैटर्न क्या है, बीच वाला लेयर डिफरेंट है, तो पहले वाले लेयर को ए रखा गया, बीच वाला बी है, लेकिन तीसरा वाला जो लेयर बना है वो है ए लेयर, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाला सेम है। तो ये ए बी टाइप का पैटर्न बनेगा, और ए बी पैटर्न बनेगा तो इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, एचसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। यस सर। चलो देखो, Packed HCP structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So the coordination number is 12. ये बात समझ में आया? Covering octahedral. यस सर। ठीक है। नहीं है समझ में सही से। अरे कोई भी एक एटम उठा लो, ठीक है, तो उसको कितने एटम्स टच कर रहे होंगे,
तो जो मान लो सेकंड लेयर का कोई एक एटम उठा लिया हम लोग, तो सेकंड लेयर का जो एटम होगा, कोई एक एटम अज्यूम करो, तो वो आपस में कितने एटम्स के कांटेक्ट में होगा? टोटल 6 एटम्स उस लेयर में, सेकंड लेयर में तो 6 एटम्स के कांटेक्ट में ही होगा ना। हाँ तो और ऊपर वाले में 3 एटम्स को टच कर रहा होगा, और नीचे वाले में सेम एग्जैक्टली 3 एटम, तो टोटल 12 हो गया। एक बार फिर से देखो, समझ आ जाएगा। देखो फिर से हम करते रहे, ध्यान से देखना। Each Yes. sphere चलो is repeated alternately in other layers. So, this pattern is known as ABAB pattern, and the structure formed is known as hexagonal close packed HCP structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So the coordination number ठीक है। is 12. yes sir, ठीक है। चलो अब आगे देखो। तो पहला वाला जो है वो सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया गया। अब दूसरा वाला जो देखेंगे हम लोग, तो वो सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा, तो उससे अलग पैटर्न जनरेट होगा। ठीक है, तो वो चीज अभी एक्सप्लेन होगा। Covering octahedral voids. The octahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer are not aligned with the spheres of either first layer or second layer. So, if we call the first layer as A type and the second layer as B type, then this third layer will be C type. Now, if we place the fourth layer over the octahedral voids of the third layer, then the sphere gets aligned with the spheres of the first layer. Thus, this pattern is known as ABC type, and the structure formed is known as cubic close packed CCP or face centered cubic FCC. ये बात समझ में आया? जी सर, इसमें मतलब ए और ए फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला सेम पोजीशन पे है। इसमें क्या किया जा रहा है, सेकंड लेयर जो है बी वाला लेयर, उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया गया। ठीक है, तो थर्ड वाला जो लेयर बना है वो सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया। उसी तरह जो फोर्थ लेयर है, तो थर्ड वाला जो लेयर है सी लेयर, अगर उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो देखोगे कि फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेयर हो जाएगा, एक जैसा होगा। तो इसलिए यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों अलग अलग पैटर्न था। दिख भी रहा है अलग अलग पैटर्न, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, लेकिन चौथा वाला जो बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं हम लोग, तीसरा वाला, तो उससे फर्स्ट और फोर्थ वाला पैटर्न क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए इसको बोला जाता है एबीसी पैटर्न। मतलब 3 लेयर डिफरेंट होगा, उसके बाद चौथा वाला लेयर जो है वो फर्स्ट वाले से मैच करेगा, उसके बाद फिर एबीसी आएगा, उसके बाद फिर एबीसी। ठीक है, तो इस टाइप से ये चलता जाएगा। ठीक है, यस सर। और इस एबीसी पैटर्न को बोला जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग या फिर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये ऑलरेडी ठीक है, तो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग या एफसीसी दोनों सेम है। ठीक है, तो देखो आगे, चलो। And is known as cubic close packed CCP or face centered cubic FCC structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So, the coordination number is 12. ठीक है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। बात समझ में आया? यस सर। तो वही 6 जो है उसी लेयर में होगा, और 3 नीचे और 3 ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। मतलब दोनों का तो सेम ही है कोऑर्डिनेशन नंबर।
हाँ, HCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा और CCP या FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो टाइप का आ रहा था ना, एक HCP आ रहा था। ठीक है, चलो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, और ये HCP का पैटर्न क्या था, AB टाइप था ना, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, कितना था, 12। ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये CCP है। CCP फिर इसको FCC भी बोला जाता है, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोजेस्ट पैकिंग। तो ये किस टाइप का था, ABC टाइप था। ठीक है, 3 डिफरेंट अलग अलग लेयर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब ये है, अब FCC का तुम लोग को Z इफेक्टिव बता चुके हैं। CCP और FCC के दोनों स्ट्रक्चर को एक जैसा कंसिडर करना, तो इसका Z इफेक्टिव तुम लोग को पता है। FCC स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो FCC में बताओ Z इफेक्टिव कितना आया था, बोलो। FCC वाला देखो, Z इफेक्टिव बताओ कितना आया था। 4। Z इफेक्टिव 4 था। तो इसमें अगर CCP या FCC में तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स TV कितना होगा, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसका इक्वल होगा, ट्वाइस इनटू Z इफेक्टिव होता है ना, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया, बोलो। 8। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, 4। 4। तो ये नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया इसके लिए। अब HCP जो HCP है, HCP के लिए इसका डेरिवेशन तुम लोग को नहीं कराया है Z इफेक्टिव का, ये काम का भी नहीं है। ठीक है, HCP का डायरेक्ट याद रखो, इसका Z इफेक्टिव जो होता है ये होता है 6। HCP वाले स्ट्रक्चर का Z इफेक्टिव जो आता है ना, AB टाइप वाला, उसका Z इफेक्टिव होता है 6। तो Z इफेक्टिव 6 है, तो इसमें अगर तुमसे पूछा जाए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, बताओ तो। बोलो। 12। हाँ, 12 हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 6। 6 ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। HCP का वो डेरिवेशन करना नहीं है एक्चुअली, Z इफेक्टिव, वो मेन हम लोग को बॉडी सेंटर्ड, FCC और सिंपल क्यूबिक वाला, वो तीनों ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। बोलो। तो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग और वॉइड्स क्लियर हो गया ना, या कोई डाउट है अभी भी, बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो। नहीं सर, क्लियर है। हेलो चंदन, हाँ सर। कोई डाउट है नो सर। क्या, नहीं। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लोकेशन ऑफ वॉइड। ठीक है, तो एक्चुअली ये वॉइड जो होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कहाँ पे होते हैं, CCP में। लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन CCP या फिर FCC। ठीक है, तो FCC में ही हम लोग को देखना है कि वॉइड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होंगे। चलो, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन। तो FCC का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। FCC का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, FCC में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, बताओ तो। सर फेस सेंटर पे। फेस के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे। कॉर्नर पे। ठीक है, तो वही वही चीज यूज कर। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो अब देखो, FCC में हम लोग Z इफेक्टिव ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Z इफेक्टिव 4 है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 8 होगा।
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, ये 4 होगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 के इक्वल होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्चुअली ये एफसीसी है, तो एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे, तो सारे कॉर्नर पे एटम होगा ही, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता ही है कि कॉर्नर एटम्स आपस में टच नहीं करते हैं, क्योंकि फेस, हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम होगा, यही होता है ना फेस के सेंटर पे। 2 3 4, ये पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाले फेस का यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और ये आगे वाले फेस का, सॉरी आगे वाले को इधर, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, बताओ। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, कॉर्नर एटम तो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं यहाँ पे, एक्चुअली ये ध्यान रखो, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल 4 मिलना है हमको। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टा, यहाँ देखो, यहाँ बॉडी के सेंटर में तो कुछ नहीं है ना, बॉडी के सेंटर पे कोई एटम है क्या, नो सर। नहीं। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है, ठीक है, बॉडी के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। और बाकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो एज के सेंटर पे होते हैं। मतलब क्यूब में टोटल कितने एजेस होते हैं बताओ तो, एज कितने होंगे क्यूब में टोटल, 12। 12 एजेस होता है। तो 12 एजेस, और यहाँ पे हमको पता है कि जो कॉर्नर एटम है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है एफसीसी में। तो कॉर्नर एटम अगर आपस में कांटेक्ट में नहीं है तो एज के बीच में तो खाली स्पेस रहेगा या नहीं रहेगा, हर यस एक सर। एज के बीच में। तो वहां पे एक वॉइड जो क्रिएट होता है एज के सेंटर पे, बिल्कुल। तो एज के सेंटर पे जो वॉइड क्रिएट हो रहा है ना, इसी वॉइड को बोला जाता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो टोटल जो टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा एज के सेंटर से, अगर टोटल हम लोग उसको, उसका कंट्रीब्यूशन किसी एक यूनिट सेल के लिए लेंगे, तो ये वॉइड जो है ये क्रिएट हो रहा है, ये वॉइड कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बता सकते हो, एज वाला जो वॉइड होगा वो कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 4। 4 में, क्योंकि एक क्यूब ये है, उसके बगल वाले क्यूब में, और ऊपर 2 क्यूब में, उन्हीं चारों क्यूब में ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना एज वाला, क्योंकि क्यूब का एक एज जो है वो टोटल 4 क्यूब में शेयर हो रहा है ना, बोलो। सर ये क्यूब वाला सर फिर से बता दीजिए, जो बोले 4 क्यूब होगा। ये जो यहाँ पे वॉइड कंसिडर करो, ये वाला वॉइड जो है 3D में सोचो, ये कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा होगा, कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये वॉइड। एक तो इस क्यूब में होगा ही, एक इसके बगल वाले क्यूब में जस्ट होगा, हाँ हाँ। और उसी उसी तरह 2 क्यूब इन दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक क्यूब रख दो, हाँ। तो वही 4 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना ये यस सर। वर्ड। तो अगर एक यूनिट सेल, हम लोग देख चुके हैं कि एज के सेंटर पे जो वॉइड होगा उसका अगर हम लोग एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन देखें तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल वॉइड जो है वो तो 4 क्यूब में वॉइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक क्यूब के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। समझ में आ रहा है, हेलो, किसी, यस सर। क्योंकि 4 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी एक क्यूब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया उसका, या एक क्यूब के लिए कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1/4 हो गया, बताओ। यस सर। और 1/4 हो गया, इसी तरह 1/4 में मतलब टोटल कितने एजेस हैं, 12। 12। तो 1/4 इंटू 12 करोगे, क्योंकि हर एक एज के सेंटर पे जो वॉइड होगा, तो हर एक एज के सेंटर वाले वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 ही होगा। तो 1/4 इंटू 12 कर दोगे तो ये टोटल उसकी वजह से कितना वॉइड जनरेट हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा।
यस सर। होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने आ गए? 3 + 1 4 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है ये सीसीपी में या एफसीसी में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे मिलेगा तुमको? एक ऑक्टा, क्योंकि बॉडी के सेंटर वाला जो होगा उसका तो कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा उसी यूनिट सेल के लिए होगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना कहीं पे। बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड होगा वो तो पूरा पूरा उसी यूनिट सेल में है, उसी क्यूब के लिए है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? नो सर। तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 लेंगे हम लोग। और एज के सेंटर पे जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उसका किसी एक क्यूब के लिए कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। तो टोटल 12 एजेस हैं, तो इंटू 12 कर दोगे तो टोटल 3 हो गया। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया? 3 + 1 4 करोगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्मूले से भी यहाँ 4 ही आ रहा था। आ रहा है? यस सर। चलो, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का हम लोग प्लेसमेंट देख लिए, कहाँ पे होता है लोकेशन। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया? 8 होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये टोटल 8 होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेट करने के लिए तुम क्या करो, ये क्यूब जो है इसको 8 छोटे छोटे क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में आ रहा है? इसको, ये वाला जो यूनिट सेल है इसको तुम एक बड़ा यूनिट सेल की तरह एज्यूम करो और इसको 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। इस बड़े क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 8 छोटे छोटे क्यूब में। तो 8 छोटा क्यूब जो बनेगा, हर एक छोटे क्यूब का जो सेंटर होगा, बॉडी का सेंटर, हर एक छोटा क्यूब का बॉडी का सेंटर जो होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बॉडी का सेंटर क्या बोलते हैं, ये बड़ा क्यूब का बॉडी का सेंटर जैसे होगा ना, तो उसी तरह इस जो ये बड़ा क्यूब है इसको 8 छोटे क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4 ऊपर वाला लेयर बनेगा और 4 नीचे वाला, 4 क्यूब नीचे आएंगे और 4 ऊपर आएंगे, आएंगे ना? यस सर। हाँ, तो जैसे ही वो छोटा क्यूब जैसे ही बन गया, तो उस छोटे क्यूब का बॉडी का सेंटर जो होगा, ठीक है, हर एक छोटे क्यूब में एक बॉडी का सेंटर होगा, हर एक छोटा क्यूब का बॉडी का सेंटर होगा या नहीं होगा? होगा। तो टोटल 8 स्मॉल क्यूब्स बन रहे हैं, तो टोटल कितने बॉडी के सेंटर मिलेंगे हमको? टोटल 8 स्मॉल क्यूब्स आ रहा है, तो टोटल बॉडी का सेंटर भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो वही बॉडी के सेंटर पे जो टोटल बॉडी के सेंटर पे देखोगे, हर एक छोटे क्यूब के बॉडी के सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टोटल 8 वैसे हमको बॉडी का सेंटर मिलेगा, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बात समझ में आया? लोकेशन ये जानना जरूरी था कि कहाँ पे लोकेटेड होता है एफसीसी में। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे मिलेगा? एक बॉडी के सेंटर पे और दूसरा एज के सेंटर पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 4 हो गया। और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगा बताओ? कहाँ मिल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड? सर वो क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं 8 में, हेलो? तो सबका सेंटर पे। सेंटर पे। हाँ, हर एक छोटे क्यूब के बॉडी के सेंटर पे जो भी स्मॉल क्यूब्स होगा, बॉडी सेंटर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं लोकेशन क्या होगा, लोकेशन बॉडी सेंटर ऑफ ऑल द 8 स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, तो टोटल 8 बॉडी सेंटर मिलेगा छोटे क्यूब का, तो वहां पे तुमको टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे बताओ? सर 8। 8 आ गया। ठीक है, तो ये इसी में हमको बस
एफसीसी वाले स्ट्रक्चर में ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन जानना रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा एफसीसी में और कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। ठीक है, या कोई डाउट है इसमें, बताओ यहाँ तक। नो सर। चलो, तो ये बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें एक रेडियस रेशियो वाला पार्ट है। रेडियस रेशियो वाला डेरिवेशन तो तुम लोग को नहीं कराना है, बट देख लो, एक मिनट रुको, देखने दो। सर और कितना क्लास लेगा सॉलिड स्टेट में? अब ये हो ही गया, मतलब अब वॉइड वाला पार्ट ही बचा हुआ है। तो वॉइड वाला, सॉरी वॉइड वाला नहीं, डिफेक्ट वाला। वॉइड तो हो ही गया आज, तो डिफेक्ट वाले में 2 क्लास और लगेगा, ठीक है। तो आज के क्लास के बाद और 2 क्लास लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लास में, क्योंकि डिफेक्ट ही बचा हुआ है सर। तो डिफेक्ट तो वो तो थ्योरेटिकल है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो डिफेक्ट वाला पार्ट 2 क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रुको एक सेकंड, डिफेक्ट वाले से पहले कुछ कुछ ये बता देते हैं तुम लोगों को। रेडियस रेशियो वाला, रेडियस रेशियो का तो डेरिवेशन तुम लोग को नहीं कराना है, वो लिखा देते हैं हम बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर में सॉलिड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड्स जनरली। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो होता है ना, आयंस का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को देखना है। तो इसमें आयंस, कैटायंस और एनायंस जो होते हैं एक लैटिस टाइप का बनाते हैं, ठीक है। तो वो लैटिस, अब हर एक आयनिक कंपाउंड्स के केस में लैटिस अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इन ये से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं। इन आयनिक सॉलिड्स द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज डिफरेंट, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पता ही है कि आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट होगा। बड़ा कौन सा होगा, कैटायन होगा या एनायन बड़ा होगा? अनायन। एनायंस बड़ा होता है, ठीक है। तो जो आयन बड़ा होता है जनरली वही लैटिस बनाता है, ठीक है। तो जनरली इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयन या द लार्जर आयन मेक्स द लैटिस, ठीक है। वो लैटिस बनाएगा, मतलब वो जो लैटिस बनेगा उस पॉइंट पे वो रहेगा। और जो स्मॉलर आयन होगा, ठीक है, आइदर स्मॉलर आयन जो भी होगा वो क्या होगा, वॉइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑक्युपाइज द, या ऑक्युपाइज द voids, ठीक है, ऐसा लिख लो, occupies the voids of the lattice, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लार्जर आयन होगा वो लैटिस बनाएगा, और जो स्मॉलर आयन होगा वो जनरली void ऑक्युपाई करता है किसी भी आयनिक सॉलिड में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि आयनिक सॉलिड्स ऑलवेज टेंड टू मैक्सिमाइज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई भी आयनिक सॉलिड जो है वो हमेशा अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाना चाहता है, मतलब वो उस फॉर्म में अरेंज्ड होगा
जिस फॉर्म में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उस ऑर्डर में वो अरेंज होगा, जिस ऑर्डर में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, सबसे मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो उसी टाइप का लैटिस बनाना चाहेगा जिस लैटिस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोई भी आयनिक सॉलिड जो अपने आप कोऑर्डिनेशन नंबर को वो मैक्सिमम रखना चाहता है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट कि द टाइप ऑफ वॉइड in which the smaller ion will go is decided by relative radii of cation and anion। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से वॉइड में, ठीक है, वो जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड का जो स्मॉलर आयन है वो कौन से वॉइड में जाएगा। तो आइदर टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि रेडियस रेशियो क्या है, केटायन और एनायन के बीच का रिलेटिव रेडियाई का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो रेशियो कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है। तो रेडियस रेशियो वो लिखा देते हैं, उसका डेरिवेशन एक्चुअली करना नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ लिख रहे हैं हम, ठीक है, जिसको लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, इसको लिख लेना तुम लोग टेबल को, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो है ये किसका होगा, आर प्लस, ठीक है, बाय आर माइनस। ये समझ रहे हो, आर प्लस बाय आर माइनस, कटायन आर या प्लस, नहीं? हाँ, आर प्लस हो गया रेडियस ऑफ कैटायन और आर माइनस हो गया रेडियस ऑफ एनायन। तो इन दोनों का रेशियो है, रेडियस ऑफ कैटायन ऊपर है और रेडियस ऑफ एनायन नीचे है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है। और इधर लिख रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, सी एन कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद इस साइड लिख रहे हैं शेप, शेप क्या होगा, और एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ कुछ सॉलिड कंपाउंड के एग्जाम्पल। तो जैसे सबसे पहला है इसमें फर्स्ट, ये जो रेडियस रेशियो है इसको चलो आर प्लस और आर माइनस इसको अगर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगा। तो इस रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर लेस देन 0.155 है, कैटायन और एनायन का जो रेशियो है उसका वैल्यू लेस देन 0.155 है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो जनरली शेप क्या होता है, ये लीनियर शेप का होता है। इसमें एग्जांपल जैसे BeF2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है जिसका शेप क्या होगा, लीनियर। नेक्स्ट है सेकंड, ये जो रेडियस रेशियो है ना, ये इसके बीच में 0.155 इससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन 0.225। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, और 3 होगा तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, शेप जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल हो गया AlCl3, ठीक है, ये यानी कंपाउंड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसी तरह तीसरा, ये 0.225 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 0.414, ठीक है, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा
और शेप होगा टेट्राहेड्रल। सर पिकोमीटर में इसको मेजर किया जाता है, क्या चीज? जो आयनिक रेडियस। हाँ, रेडियस तो बहुत ही कम होगा ना, तो वो तुम पिकोमीटर हो गया या नैनोमीटर हो गया या एंगस्ट्रम हो गया, ठीक है। तो ये सब यूनिट्स जनरली यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल हो गया ZNS। फोर्थ हो गया ये 0.414 से ग्रेटर हो गया और 0.732 से लेस हो गया, ठीक है। तो इसका भी 4 है। अब इसमें ये स्क्वायर प्लेनर होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए नीचे वाला कंडीशन है और टेट्राहेड्रल के लिए ऊपर वाला कंडीशन। इसमें एग्जांपल, ये जनरली स्क्वायर प्लेनर वाला अभी तुम लोग इसमें केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़े होगे ये वाला। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बताएंगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे ये आता है, स्क्वायर प्लेनर वाला स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जांपल है PtCl4 और इसके पावर 2-। तो देख रहे हो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है, तो उसी में जनरली ये सर स्ट्रक्चर मिलता है। हाँ, XCF4 नहीं हो सकता है? क्या? नहीं, XCF4 कैसे है? XCF4 का थोड़ी, XCF4 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। उसका ज्योमेट्री जो होगा, शेप हो गया ना, तो सर आप शेप ही लिखे है ना। ज्योमेट्री, ठीक है। वो ओवरऑल ज्योमेट्री हम लोग XCF4 का देखो, XCF4 में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ी ना हो, हम लोग स्टेरिक नंबर से बात कर रहे हैं, तो वहां पे XCF4 के केस में स्टेरिक नंबर डिफरेंट है ना, यस सर। ठीक है। तो वहां पे वही स्टेरिक नंबर से रिलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे स्टेरिक नंबर आ रहा था तो उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर दोनों ऐड कर रहे थे, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग शेप और ज्योमेट्री डिटरमाइन कर रहे थे ना। समझ गए सर। तो उसी तरह यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। नेक्स्ट है 5। देखो ये है 0.732 से ग्रेटर हो गया एंड लेस देन 0.999, ठीक है। क्योंकि 0.991 हो जाएगा तब तो बराबर ही हो जाएगा केटायन और एनायन। तो ये 0.99 इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सॉरी, एक बीच में वाला मिस हो गया, तो इसमें एक और चीज था, कि 0.414 से लेस देन x और 0.732, इसमें दो पॉसिबिलिटी, एक स्क्वायर प्लेनर वाला और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी पॉसिबल है इसमें, जिसको कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वाला स्ट्रक्चर जो है NaCl इसका एग्जांपल है, ठीक है। और नेक्स्ट 6th है ये 0.732 से लेस देन 0.999, ठीक है। इसमें 8 हो गया और इसमें जो आएगा ये बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड BCC क्यूबिक हुआ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें आ जाएगा CSCl। ये सारे लिमिटिंग रेडियस, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये वैल्यू याद रखना तुम लोग, एटलीस्ट लिमिटिंग वाला जो वैल्यू आ रहा है, देख रहे हो ना 0.155, ये एक लिमिटिंग वैल्यू आया। इससे अगर कम होगा इन दोनों का रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है 0.225, इससे अगर कम होगा, इन दोनों के बीच में अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब नेक्स्ट है 0.414, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब 0.414 से 0.732, इन दोनों के बीच में होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, एक कोऑर्डिनेशन 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और नेक्स्ट है 0.732 से 0.999, तो ये इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये CSCl स्ट्रक्चर, ठीक है। यस सर।
ये बस लिमिटिंग वाला जो पॉइंट्स है ध्यान, ठीक है। एक्चुअली इस डेरिवेशन तुम लोग एक काम का नहीं है, ये पूछिए केटायन और relation है। चलो ये अगर समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन कराएंगे आयनिक स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसमें, तो वो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद एक क्लास लगेगा तुम लोगों को वो जो है डिफेक्ट्स के बारे में बताने में, ठीक है। तो 2 क्लास और लगेगा, मैक्सिमम 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग उसके क्वेश्चंस किए थे बुकलेट से, पैकिंग फ्रैक्शन डेंसिटी वाले क्वेश्चंस नहीं किए हो सर। बुकलेट से? कर लेना, वो क्वेश्चन बुकलेट से प्रैक्टिस करो। और एक होमवर्क दिए थे ना तुम लोग को लास्ट क्लास में, वो नहीं हुआ? हेलो हेलो, होमवर्क दिए थे नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में, हुआ वो चंदन? नहीं बना? उसको नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो और भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे का, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? वॉइड क्लियर हो गया ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर पैकिंग कैसे होता है क्लोजेस्ट पैकिंग में, सर एक जगह ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पता चल गया, तो फिर प्लस आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, बोलो। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में पूछ रहे हैं। क्या +1? हाँ 3 + 1 की 1 सर कहाँ से आया था इसमें? हाँ, तो एक 3+1 1 वाला जो है वो बॉडी के सेंटर वाला, बॉडी वो बॉडी के सेंटर वाला जो होगा उसका पूरा कंट्रीब्यूशन तो उसी क्यूब के लिए होगा ना, हाँ ठीक है। आ गया समझ में? हेलो, हो गया सर वो। चलो चलो फिर, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। अच्छा फिर आगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चलो रहने दो, आज नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, एंड कर रहे हैं।